जो हमारे पास एक्सपर्ट है आए हैं, मैं सृष्टि सिंह जी को और डॉक्टर सृष्टि सिंह जी को स्टेज में बुलाना चाहूँगा। वो आए और स्टेज पर बैठे। का जो सेशन है एक 1 आवर चलेगा और 3-4 लाइन में मैं उनके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। सृष्टि जी हमारे ही मतलब जेएनयू से लिंग्विस्टिक सेंटर से गिरीशनाथ झा जी के अंदर उन्होंने पीएचडी की है और उससे पहले उन्होंने एमफिल एमए दोनों लिंग्विस्टिक सेंटर से उन्होंने कंप्लीट की है। और सृष्टि जी का काफी उसमें टैगिंग एंड लिंग्विस्टिक का जो भी क्या कहते हैं ये जो पोस्ट टैगिंग एंड थियोरेटिकल जो मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन इस कार्य में उन्होंने काफी समय तक काम की है। ILCI करके हमारे पास प्रोजेक्ट था, उसमें भी उन्होंने कार्य की है। तो अभी हम उनसे सृष्टि जी से उसमें जो पोस्ट टैगिंग होता है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होता है, तो वो इसके बारे में हमको कुछ नॉलेज देंगे, शेयर करेंगे। तो मैं सृष्टि जी को यहाँ पर मंच में कहने के लिए बुलाना चाहूंगा। आप आ जाइए। First of all, yes, I would like to thank everybody, all my teachers and the organizing committee and all of you friends, because you all have invited me here today. I think after COVID, this is the first time that we are meeting in person. So I can see many new faces here. Hi to everyone. I would like to, I will try कि मैं थोड़ा सा सेशन इंग्लिश और हिंदी का मिक्स रखूँ so that it is easy for everyone to understand. As Kabir correctly said that I am a graduate in linguistics from BTU and I have completed my MPhil and PhD from JNU under Professor Girishnath Jha. Currently I am working with Shape.ai. Last year I was working with CIL. Before that we were working in a project ILCI. So we have a long time association with Linguistics Department, with Sanskrit Center, with Government of India MHRD data team, and we are working with them. I'm very happy that still there is a lot of opportunity for everyone, right? Today, although I'm going to talk about POS tagging and multi-word expressions, but my focus of lecture is not to tell you what POS tagging is or what multi-word expression is. My focus is why we do it. क्यों करते हैं? अभी there is a shift in trend. It's all LLMs. It's all ChatGPT. I think all of you know ChatGPT, right? Many of you must have used it also. कितने लोगों ने ChatGPT use किया है? Everybody, right? Right. So अभी everyone know it's a shift. तो हमने ऐसा भी सुना है, रूमर्स तो बहुत सारे होते हैं कि अभी लिंग्विस्ट का क्या काम है, अभी इंजीनियर्स का क्या काम है, सबकी जॉब्स तो जा रही हैं, ChatGPT ने तो सब ले लिया है, राइट? तो ये थोड़ा सा हमें भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है व्हाट इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, राइट? बट इज इट रियली ट्रू? ये क्या पैराडाइम शिफ्ट इतना इजीली, इतना जल्दी, क्विकली आ जाएगा? आई वुड लाइक टू से नो, नॉट दैट क्विकली, because there are a lot of work, there are a lot of projects going on in different spheres for decades, for past a few years, which is still not, like, the target is not yet accomplished. So ऐसा नहीं है कि रातों रात everything is going to change. We have a very wide area where we as linguists, as Sanskrit researchers, as language researchers, language engineers, we have a lot to do, right? As I mentioned, I'm in Shape. Shape is a data provider company. We provide data, we structure data. We know it's the age of data. Everywhere we have data, right? But before we structure it, before give it a particular form, this data is not of that use. So we are basically into data service sector. और जो बहुत सारे सिस्टम जो बन रहे हैं, कंपनीज बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट कर रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन के लिए, दे रिक्वायर डेटा, राइट? सो फॉर दोज कंपनी, दोज हु आर क्रिएटिंग मॉडल्स राइट नाउ, उनके लिए वी आर गिविंग we analyze data, we give them support, we offer them annotated data. For them we are ChatGPT, then they create a system and then you
use that ChatGPT, right? So basically the community sitting here, all of you are part of this thing. There is a big scope. We have many opportunities in this areas, and if you have any doubt, I will try to make it more clear for you that how we can explore opportunities in between the lines, in between the modules that we are learning. And if you have any doubt, if you want to ask anything, please feel free and ask it by the end of the session. Okay? ठीक है. Annotation. सबसे पहले देखते हैं एनोटेशन क्या होता है. तो ट्रेडिशनली एनोटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं, सपोज आई हैव अ हैंड आउट, तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी. वहाँ वो क्या हो गया, हमने एक तरीके से उस चीज़ को टैग कर दिया. ओके, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट टू इट. दैट इज अ काइंड ऑफ एनोटेशन. जब हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, हम उसमें से छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं. वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रेलेवेंट मटीरियल आउट ऑफ इट. व्हाट आर वी डूइंग हियर? उन छोटे छोटे टॉपिक्स को एनोटेट कर रहे हैं कि दीज आर माई हाईलाइट्स. वी कैन डू इट manually, we can do it via notes. We can also use it on corner notes like as we do. So we are basically, when we are studying, we make use of annotation unknowingly. We are annotating everything in real world also. Annotation is like we have some object, some entity, and we are giving a label to it. My name is Shrishti Singh, right? I'm a girl. So if you ask me on the level of word, girl is a pure tagging. Word level annotation, my name is NER, it's named entity recognition, right? If I see my association with my teachers, I'm a student, they are teachers in social setup, this is also a kind of annotation. So we are in world full of annotation. Everything is annotated. In Panini grammar also and in Sashiori linguistics also, we see the importance of signify and signifier. Signified, the object, and signifier, that signifies some object. किसी ऑब्जेक्ट को हम जो नाम देते हैं, जैसे इसे मैंने टेबल बोला, सो दिस इज एनोटेटेड एज टेबल इन इंग्लिश, बट इन हिंदी इट्स समथिंग एल्स, इन सम अदर लैंग्वेज इट्स समथिंग एल्स. सो द लेबल दैट वी प्रोवाइड इज बेसिकली एनोटेशन. नाउ प्रॉब्लम कैसे होती है, कहाँ कहाँ आती है? मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे रियल वर्ल्ड में अभी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नो वी लर्न लैंग्वेज नेचुरली, वी लर्न आवर मदर टंग नेचुरली. लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज हम एफर्ट्स के साथ भी सीखते हैं. ठीक है, किसी एक लैंग्वेज में वी माइट नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. लाइक इफ हिंदी इज माई मदर टंग, आई माइट बी वेरी प्रो एट इट, बट प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी गो इनटू सम अदर लैंग्वेज. सिमिलरली सिस्टम ऑल्सो हैज टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस. हम जब सिस्टम पे कोई नया हम जब मशीन में कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं या कोई नया एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो हमको उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है. हम as human being, we have 5 senses. We can touch it, feel it, we can understand what is the nature of this product and how is it is different from that product. But system does not have those 5 senses. So annotation and information providing good and correct information to the system becomes very crucial when it comes to machine learning, right? For example, in Hindi हम सब जानते हैं वेजिटेबल होती है लौकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल गार्ड, राइट? इन सम रीजनल लैंग्वेज हम इसको घिया भी बोलते हैं. But in Gujarati, ghee means something else. Ghee is a surname. You cannot cut and cook it, right? So these are the challenges in natural language. Like when I was in Mysore, I always asked, like people I know, I don't know, they all come to me and ask, like whenever you meet somebody, they'll ask you, "Uta ita," like khana khaya. So in morning, afternoon, night, whenever you are meeting somebody, they'll tell you "Uta ita." Now this is connotation. After a particular time, I realized, oh, it is not something that they are very interested about my food. कि मैंने खाना खाया, क्या खाया? It is basically about आप ठीक हो. So they have a different type of connotation, semantic, pragmatic, social setup, and we have a different kind of social setup. So these things, when we are moving in machine learning, from pure tagging to morphological to syntax, semantic, pragmatic, these things will come up to us as challenge, and we need to understand these challenges. Now these challenges are the scope for us to enter. ये जो gaps होते हैं, challenges होते हैं, वही हमारा opportunity है, where we can fit in. इसीलिए हम रिसर्च में एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कीपिंग दिस इन माइंड दैट व्हाट कुड बी फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? I'll give you another very interesting example. Digging potatoes. Anybody know what is this? Just
just for this reason, I did not put its description here. Anybody know what is digging potatoes? Yeah, it's a phrase. Very good. It has some other meaning, of course. It is a phrase from British English. So yesterday when I was creating my PPT, my husband reminded me of this phrase that we were discussing long time back. So he was in call with somebody, he called him and he asked for a person that if Mr. XYZ is there. His son picked up the call, he said, he sounded a little irritated and he said no, he must be digging potatoes somewhere. So he thought, oh, he must be digging it in the garden, let's call him. He asked him to please call him. He said, no, we can't call him, he's dead now. So digging potato means that it is sarcastic phrase. When somebody is dead, you can call it, oh, he is digging potatoes. So these are features of language, right? ये सारे language के features होते हैं जो हमें समझने हैं और अपनी अपनी direction choose करनी है based on this. Now why I am giving these examples? क्योंकि here is a one word, right? This is what we are talking about word level analysis. Uta ita. Here we are talking about phrase level analysis. And third, digging potatoes, we are talking about idioms. किसी लैंग्वेज की लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो हम हर तरीके के एनालिसिस की बात कर सकते हैं थ्रू एनोटेशन. अब ये तो हो गई ह्यूमन लैंग्वेज की बात. मशीन के साथ किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, ये मैं कुछ आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ. जो बिकॉज दिस वर्कशॉप इज अबाउट ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में तो बहुत सारे इश्यूज आते थे. अभी बहुत हद तक हमने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया है. दीज आर सम बेसिक वंस. जैसे जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर है उसके लिए प्लेइंग क्रिकेट, अगर सपोज मुझे इंग्लिश में सीख रही हूँ, आई एम अ बिगिनर, तो फॉर मी प्लेइंग क्रिकेट ये मेरे लिए समझ में आता है. पर प्लेइंग पियानो मेरे को नहीं समझ में आता है. पियानो तो बजाया जाता है ना, क्रिकेट खेला जाता है, प्ले मीन्स खेलना. बट इन इंग्लिश प्लेइंग पियानो एंड प्लेइंग क्रिकेट आर सेम. तो एक मशीन अगर प्लेइंग क्रिकेट पे अच्छा काम कर रही है इन इंग्लिश, हो सकता है वो दूसरी लैंग्वेज पे उस चीज़ पे अच्छा काम ना करे क्योंकि उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट इज वॉट इज कॉल्ड द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इसलिए एनोटेशन को हम जितना अलग अलग लेवल्स के एनोटेशन को जितना डिटेल और एक्यूरेट करते हैं, हमको उतना अच्छा सिस्टम मिलता है. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन कंपरेशन लिंग्विस्टिक्स. राम आम खाता है, राइट? तो इसका पहला मतलब क्या हो गया? राम इज ईटिंग मैंगो. बट इफ यू आस्क द सेम थिंग टू मशीन, ट्रांसलेशन सिस्टम आपको क्या बताएगा? राम इज अ जनरल अकाउंट, क्योंकि उसके लिए आम खाता है. ओके, सो राम बिकम्स अ जनरल अकाउंट. उसी तरह अगर हम देखें कि सब्जी को चला दो, आप कभी ये ट्राई करिएगा, मे बी अब अच्छे रिजल्ट दे. गूगल ट्रांसलेट विल गिव यू रिजल्ट लाइक प्लीज वॉक द वेजिटेबल्स, right? Okay, so this is where annotation comes in place and it is very important. क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का हमारे पास सिस्टम के पास सिर्फ उसका एक टोटली इंफॉर्मेशन है, वो ऑब्जेक्ट का लेबल और जो हम लेबल दे रहे हैं वो. वी सेड अ टैबलेट एंड द लेबल दैट वी आर प्रोवाइडिंग कि दिस इज अ नाउन. उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? वो प्लास्टिक का मटेरियल होगा. इट विल बी हैविंग सम डायमेंशंस. उसका फंक्शन क्या होगा? वी विल बी वर्किंग आवर ऑपरेशंस देयर. इफ इट इज मोबाइल वी विल बी वर्किंग इट फॉर मेकिंग कॉल्स. और ऑपोजिट टू दैट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन एज अ टैबलेट, तो उसका क्या होगा? उसका फंक्शन अलग होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग होगा, उसका सोर्स अलग होगा. टैबलेट्स को हम फैक्ट्री में बनाते हैं, एप्पल को हम कल्टीवेट करते हैं, बट एप्पल मोबाइल फोन कंपनी इज नॉट कल्टीवेटेड. And tablet, the gadget, is not like made in, it's not like something grown on a tree, right? So these kind of metadata information that we provide to the system is basis of all NLP engineering that we are doing right now. All annotations is the basis of all NLP basically, I would like to say. Okay, so I was talking about shift. ठीक है, हम थोड़ा पीछे से चलते हैं कि एनोटेशन. अभी तो LLM का टाइम आ गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, राइट? LLMs कितने लोग जानते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा इसके बारे में? किसी ने ट्राई किया हो ऐसे ही? LLM इज बेसिकली ChatGPT, राइट, विच इज यूजिंग जनरेटिव AI. यस प्लीज. So they take large data from as a source for the corpus, and then they analyze, so the result will be more and more approximate.
Right, हम the beta natural लेते language. हैं, राइट, हम बीटा लेते हैं, हम सिस्टम को देते हैं और वो अपने आप से उसको ट्रेन करके अपने मॉडल के मेथड से बहुत अच्छे लाइक वंडरफुल सिस्टम्स बना के देता है. एनी अदर इनपुट? It's a artificial neural network एक architecture है, data architecture है, basically large language model. This is several model, and it is like basically in the form of artificial neural network. आर्टिफिशियल Deep learning model. राइट राइट. So it is used in many. इनकोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में सेंड करते थे. व्हाट वर वी डूइंग देन? उस इंफॉर्मेशन को हम किसी सीक्रेट कोड से एनोटेट कर रहे थे और हम उसको सेंड कर रहे थे, राइट. उसके बाद जैसे जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP आगे आता गया, धीरे धीरे शिफ्ट आया जिसमें हमने SVM मॉडल, HMM मॉडल, CRF मॉडल, डिफरेंट मॉडल से अपने सिस्टम को ट्रेन करना सीखा, अच्छे अच्छे सिस्टम्स बनाने सीखे. NLP में हमने देखा और कंप्यूटेशन में हाथ आजमाया. धीरे धीरे हम AI की तरफ बढ़ते गए. उसमें हम क्या करते थे? वी वर कलेक्टिंग डेटा, हम उसको स्ट्रक्चर करते थे, हम उसे अलग अलग लेवल्स पे एनोटेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम एक अच्छा सा सिस्टम बनाते हैं. अभी इन दिस टर्म ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अभी हमारा कहना है कि हमें ज़रूरत नहीं है ट्रेडिशनल NLP की या स्टैटिस्टिकल NLP की. पर क्या सच में हमें नहीं है? एनोटेटेड डेटा विल ऑलवेज बी इन प्लेस. जैसा मैंने बोला कि जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उनको तो डेटा लेबल्ड चाहिए जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हैं. अगर कोई लॉ फॉर्म के लिए कर रहा है तो उनको उनके डेटा इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए चाहिए. कोई इंश्योरेंस कंपनी में है, कोई फाइनेंस में है, गवर्नमेंट है, किसी भी एरिया में जो भी डेटा आप यूज़ करेंगे LLM सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, दैट नीड टू हैव सम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. उसका एक एनोटेशन, एक लेबलिंग जरूरी है. दैट इज वेयर LLMs आर ऑल्सो यूजिंग एनोटेशन. सो एनोटेशन इज की टू एवरीथिंग. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनोटेशन एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. Is it good with everyone? Okay, so I'll not go into these bookish things. We'll just talk. And for accuracy also, अगर आप कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को मीट करने के लिए हम सिस्टम का इवैल्यूएशन करते हैं, उसको उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, फाइन ट्यून करने के लिए एनोटेटेड डेटा की ज़रूरत होती है. ओके, NLP में हम अभी 3 टाइप के एनोटेशन पे मेनली फोकस करते हैं, विच इज इमेज एनोटेशन, टेक्स्ट एनोटेशन और स्पीच एनोटेशन. इसका एप्लीकेशन देखते हैं. अब मुझे ज़रूरत नहीं डिफाइन करने की एनोटेशन क्या होता है, वी ऑल नो, राइट. इमेज एनोटेशन, इज इट बेटर? ओके, तो ओके, जब हम किसी इमेज को एनोटेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दैट डेटा बिकम्स एनोटेटेड डेटा फॉर इमेज एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे एक बच्चा है, वो बेसबॉल खेल रहा है, ठीक है. मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप कैसे करेंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ इसका यूज़ कहाँ कहाँ है. ये तो हम समझ गए कि बहुत सारे टाइप्स के एनोटेशन होंगे. हम POS की भी बात करेंगे, हम जानते हैं चंकर होगा, पार्सर होगा, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर की बात करेंगे. हाउ वी आर एक्चुअली यूजिंग इट इन रियल लाइफ, राइट. तो इसके यूज केसेस क्या हैं? अगर कोई ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कंपनी है जिसको इमेज एनोटेशन कराना है, तो उसका फोकस क्या होगा? अच्छा, हम मर्चेंडाइज हैं, वो हमें डेटा देगी, वो क्या बोलेगी, आप इसको एनोटेट करो. ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में क्या एनोटेट करेंगे? हमारा फोकस होगा इस बच्चे ने क्या टी-शर्ट पहनी है, इस बच्चे ने बेल्ट लगाई है, उसने शूज़ पहने हैं, उसने ट्राउजर्स पहने हैं, कौन कौन से ब्रांड के उसने कपड़े पहन रखे हैं. दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ ई-कॉमर्स. सेकेंड यूज केस फॉर द सेम इमेज, अगर ये कोई स्पोर्ट्स ब्रांड होगा तो उसका फोकस क्या होगा? बेसबॉल, सॉरी, और शूज, यस, जर्सी, ग्लव एंड हेलमेट, ऑफ कोर्स. सो हमारा पूरा उसी इमेज को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, राइट. और अगर वो ही इमेज कोई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए यूज कर रहा हो या किसी तरीके का ऐसा सिस्टम बनाने के लिए यूज कर रहा हो जिसमें ह्यूमन फिगर्स को एनोटेट करना हो, तो उसका एनोटेशन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. देन दैट पर्सन विल बी लुकिंग फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बी, both ears, eye, face, both hands will be marked differently, both legs will be marked differently, right. Upper body, lower body, उसका perspective change हो गया, right. So these are different kind of use cases that we are using in image annotation.
इसके कुछ अदर पॉपुलर यूज केसेस भी हैं, जैसे हम सब गूगल मैप्स यूज करते हैं एंड वी नो हाउ डिटेल इट इज। हर एक गली का, हर एक मकान का, आपके गार्डन का, हर एक एरिया का, हर लोकेशन का उसमें डिटेल मैपिंग होता है। और हमने तो ये भी देखा होगा कि बहुत सारी गूगल की कार्स हैं जो अभी भी जो एरियाज रह गए हैं, इंटीरियर रिमोट एरियाज, वहाँ पे घूम घूम के वो मीटर बाय मीटर एरिया का वो लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, दे आर अपडेटिंग देयर सिस्टम, राइट। दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ इमेज एनोटेशन। देन द सेकेंड वन इज ई चालान। किसका किसका चालान कटा है? ई चालान किसका किसका कटा है? अच्छा, ई चालान वाले भी है, ठीक है। तो क्या होता है ई चालान में, कैसे उसको पता चलता है ये आप ही है जो चला रहा है? एनी क्यों? फोटो खींचते हैं। तो सपोज मैं आपकी गाड़ी ले लूँ तो चालान मेरे पास आना चाहिए ना, मेरी फोटो खींची उन्होंने। नंबर प्लेट व्हीकल का जो नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, उसको बेस कर देते हैं। और अभी तो ये हो गया कि डैशबोर्ड में लगने लग गया है, तो उससे भी इजी हो गया। करेक्ट करेक्ट। ये जितना आपका डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस है, डिजिटल आपका नंबर प्लेट है, ये सब हमें चालान की तरफ ले जाता है, राइट। तो भी क्या होता है, हमारे व्हीकल का नंबर प्लेट इज अनदर यूज केस। इसको भी बहुत सारे तरीके से इसके लिए एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं। वन ऑफ देम इज चालान। वो हमसे थोड़ा वी डोंट लाइक इट, बट एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि वो आपके नंबर को स्कैन करता है और उसके थ्रू आपको द ओनर ऑफ द व्हीकल उसको उसका चालान भेज देता है। So this is one of the applications, and it is annotation based because we are annotating these number plates. Okay, तो जितने लोगों के चालान कटे हैं, बैठ के कोई कहीं पे उनके नंबर प्लेट का एनोटेशन करके दे रहा है सिस्टम बनाने के लिए। सैम्पलिंग उन्होंने ही की है। Okay, that was image annotation. Now I'll give a little brief about text and speech, and then we'll come to pause tagging and multi-word expressions. Okay. In text annotation we have different levels. जैसा मैंने बोला, जैसे इमेज के साथ होता है वैसे टेक्स्ट के साथ भी होता है, बट टेक्स्ट को एनोटेट हम अलग अलग लेवल्स पे करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड लेवल, जिसको हम पीओएस टैगिंग कहते हैं। उसके बाद हम चंक लेवल पे जाते हैं, जहाँ हम छोटे छोटे दो वर्ड्स के चंक, दो तीन वर्ड्स के चंक्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, उनको एनोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सो जवाहरलाल, नेहरू एंड यूनिवर्सिटी, ये 3 वर्ड्स हैं जिनको पीओएस टैगिंग हम एनएनपी देंगे। बट इसके बाद जब थोड़ा फ्रेज लेवल पे जाएंगे तो ये एक फ्रेज बनेगा, एक चंक बनेगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम नाउन चंक का फॉर्म देंगे। फिर उसके बाद हम सिंटैक्स लेवल पे जाएंगे, किसी सेंटेंस में हम यूज करेंगे, वहाँ हम बताएंगे इसके आर्ग्यूमेंट्स कि कोई सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो हम उसको सेंटेंस लेवल पे एनोटेट करेंगे। जब हम उसकी मीनिंग की बात करते हैं तो हम उसके प्रैग्मेटिक एनालिसिस की बात करते हैं, जो पिछले सेशन में रितेश जी ने बताया भी था। और जब हम उसके कॉनोटेशन की, सोशल कॉनोटेशन की बात करते हैं, लाइक पोलाइटनेस, लाइक साइन बोर्ड इफेक्ट, तो हम उसके प्रैग्मेटिक मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे हम टेक्स्ट का एनोटेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एनोटेशन है, इसके अलावा भी यूज केस के हिसाब से हमारा एनोटेशन चेंज होता है। जैसे मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्शन, MWE, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इट्स अ मल्टी वर्ड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि एक नेम है, ये एक नेम है, ये ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्ड से बना हुआ है एंड इट हैज इट्स ओन मीनिंग, सो इट्स अ मल्टी वर्ड, राइट। इसका एक पार्ट हो गया नेम्ड एंटिटी, दैट वी विल टॉक। एंटिटी लेबलिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एनोटेशन लाइक एंटिटी लेबलिंग, अलग अलग डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंस डोमेन है तो उसमें टेररिज्म है, दैट इज वन एंटिटी, बॉम्बार्डिंग है, दैट्स अनदर एंटिटी, रैंसमवेयर है, दैट्स अनदर एंटिटी, राइट। तो उसका लेबलिंग उसके अकॉर्डिंग होता है, उसका एनोटेशन उसके डेटा के अकॉर्डिंग होगा। देन एंटिटी रिलेशन, कि हम दो चीज़ों की रिलेशनशिप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट एरियाज ऑफ एनोटेशन। ओके, आई गिव अ लिटिल हिंट ऑफ स्पीच एनोटेशन हियर विच विल बी कवर्ड इन सम अदर लेक्चर। सिमिलरली स्पीच एनोटेशन में क्या होता है, स्पीच एनोटेशन में अभी टेक्स्ट में तो हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ था, स्पीच में एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, उसको हम कैसे एनोटेट करेंगे। सो देयर इज लेटेस्ट मेथड ऑल्सो, देयर आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑल्सो। व्हाट वी डू, हम उसको जो स्पीच है उसका पहले तो स्पीच का मेथड डेटा लेंगे और दूसरा स्पीकर का मेथड डेटा लेंगे।
इफ इट इज अ डेटा फॉर सर्वे और समथिंग, हम स्पीकर का मेटा डेटा लेंगे, और इफ इट इज जस्ट अ स्पीच डेटा बीइंग यूज्ड फॉर सम एप्लीकेशन, जस्ट द मेटा डेटा ऑफ स्पीच इज एनफ. ठीक है. स्पीच में क्या क्या चीज़ें हैं, उस स्पीच का जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसका नेचर क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसको कैसे कैसे हमने क्लासीफाई किया है, किस अप्रोच के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज मेटा डेटा ऑफ स्पीच. एंड जिस स्पीकर ने बोला है, सपोज हम कोई रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, फील्ड वर्क डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जिसने बोला है उसका नेम, एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर, ऑक्यूपेशन, दीज ऑल फॉल्स अंडर स्पीकर मेटा डेटा. दीज इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हमारा सिस्टम हमारे ऑब्जेक्टिव से कितना मीट कर रहा है और कितना दूर है. राइट. अगर हमने कोई सर्वे बच्चों के लिए किया है तो कि मतलब बच्चों की स्पीच चाहिए उसमें, तो उसमें इन्फॉर्मेंट का एज शुड बी ऑफ अ किड लेवल. 50 ईयर्स इन्फॉर्मेंट नहीं होना चाहिए. अगर हमने मतलब डिसाइड करता है, दीज फैक्टर्स आर डिसाइडिंग फैक्टर्स कि क्या एप्लीकेशन है और हम कैसा डेटा लेंगे. ठीक है. इसके अलावा अब स्पीच में हम कैसे एनोटेट करते हैं. स्पीच में वी हैव डिफरेंट लेवल्स. लाइक सबसे पहले हम स्पीच को सेगमेंट करते हैं. वी ब्रेक अ बिग स्पीच इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट टाइम सेगमेंट्स, डिफरेंट सेंटेंसेस. राइट. तो जिस तरीके का सेगमेंटेशन आपको चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग उसको सेगमेंट करते हैं. देन बिकॉज इट इज अ स्पोकन डेटा वी ट्रांसक्राइब इट. हम उस डेटा को स्पीच फॉर्म से रिटन फॉर्म में ट्रांसक्राइब करते हैं. उस ट्रांसक्राइब डेटा को डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस, लाइक एम आई ऑडिबल टिल द एंड. ओके. डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट यूज केसेस, हमारा क्या यूज केस है, हम उस डेटा को उस हिसाब से यूज केस के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिकली एनोटेट करते हैं. और आपने कुछ केसेस देखे होंगे नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन के. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्लोज कैप्शनिंग का. बहुत सारी मूवीज में आता है कि कोई चल रहा है, अचानक से एकदम अंधेरा है और सस्पेंस म्यूजिक बजने लगता है पीछे से. स्क्रीन पे नीचे लिख कर आता है सस्पेंस म्यूजिक. राइट. सो दैट इज कॉल्ड क्लोज कैप्शनिंग, जो नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन है. यहाँ हमारा लिंग्विस्टिक कुछ भी इनपुट नहीं है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि स्पीच की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट. वी कांट लेट इट गो. देयर वी यूज क्लोज कैप्शनिंग ऑल्सो. देन another example is horn blows. पीछे से किसी ने गाड़ी को हॉर्न बजाया है तो आपके इमेज पे लिख कर आता है horn blows. If somebody is laughing or somebody is panting, somebody was running, he came, stood and it said panting. So it's very common cases of closed captioning, right? ठीक है. इस तरीके से हम स्पीच को एनोटेट करते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू POS टैगिंग. कितने लोग अवेयर है इससे, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग से? Okay. Okay. I just wanted to understand so that I'll go that way. So as I said, annotation has many levels. The very first and the most basic level of annotation for statistical NLP is part of speech tagging. हम किसी वर्ड, हम एक लैंग्वेज में जो स्ट्रीम, वर्ड की स्ट्रीम है उसमें हर एक वर्ड को, मतलब हर एक टोकन को एनोटेट करते हैं उसके पार्ट ऑफ स्पीच के लिए. पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इनका यूज, इनका एप्लीकेशन बहुत सारी एरियाज में, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में, टेक्स्ट समराइजेशन में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारी जगहों पे इनका एप्लीकेशन है. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली होते क्या है, तो हमने ग्रामर में पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, दीज आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइट. इनमें नाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? वी ऑल नो व्हाट इज द नाउन. हाँ, मतलब ये सबको याद ही होगा, है ना. वर्ब क्या होता है? क्रिया क्या होती है? एडजेक्टिव. क्वालिटीज ऑफ अ नाउन इज एडजेक्टिव. एंड व्हाट इज एडवर्ब? Quality of a verb. That qualifies the verb is adverb. What is preposition? Preposition establishes relation between two nouns. Right? Conjunction? Joining word. Joining two words or phrases. And interjection? Oh, you know it's all. Oh is an interjection, right? Okay. तो ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. लेकिन लैंग्वेज में सिर्फ इतने ही पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते. मशीन को उनकी इंफॉर्मेशन करेक्टली देने के लिए हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जो चीज़ उस नाउन के बदले यूज हुई है
जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसका टाइप क्या है। अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो उस वर्ब को किस फॉर्म में कर रहे हैं। मैं जाती हूँ अगर मैं कह रही हूँ तो मशीन को भी वही प्रेडिक्ट करना चाहिए, मैं जाती हूँ या मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी नहीं प्रेडिक्ट करे, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम पीओएस लेवल पे सिस्टम को या डेटा को देते हैं। कैसे, आई एम रियली सॉरी इफ इट इज वेरी स्मॉल, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल? Last line, if it is visible. Okay, no worries. This is Pentree Bank POS tagging. Pentree Bank you will find anywhere in open source. आप बस Google पे Pentree Bank टाइप करिएगा, you will find it. I'll explain it. We'll see it this way. Sorry, I can't read the mic. Okay, so here in the first category we have noun. Noun has 3 categories. It can be a common noun, it can be a common noun plural, और इट कैन बी अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब जैसे मान लीजिए एप्पल, कॉमन नाउन प्लूरल मतलब कॉमन नाउन इज प्लूरल फॉर्म एप्पल्स, एंड प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ अ person or a place, right? Those are proper noun. Then we have pronoun category. प्रोनाउन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सर्वनाउन। सबसे पहला तो व्यक्तिवाचक ही शी इट, और दूसरा पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन, उसका, मेरा घर, तुम्हारा घर, उसका सामान, ठीक है। देन वी हैव वर्ब्स। वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश पीओएस टैगिंग। वी ऑल्सो हैव स्कीमा फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेज में भी एनएलपी में बहुत काम हुआ है और बहुत सारे पीओएस टैग अवेलेबल हैं, पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम मोस्टली BIS को फॉलो करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लाइक मी, आर टीम, ऑल ऑफ अस। For Hindi, for Bhojpuri, Maithili, Uriya, Gujarati, Punjabi, we are following BIS schema mostly. But depending upon your use case, you can select it. There are many schemas available. जैसा रितेश जी ने भी कहा था, आपको डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग एक स्कीमा सेलेक्ट करिए, उसको मॉडिफाई करिए और यूज करिए, राइट। हम भी अपने डेटा सेट में इसको मॉडिफाई करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। वी हैव adjective, comparative and superlative adjective, good, better, best. Then we have adverb. We have 3 categories like adverb, comparative and superlative, right? Fast, faster, fastest, let's say. Then we have some more categories for interrogative words, WH words, what, who, which, whose, why, how are we using it, ठीक है। तो इनके हम POS में कैसे यूज करते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेट वॉट है तो WDT होगा, अगर कोई पॉजिटिव प्रोनाउन है, WH प्रोनाउन है तो WP डॉलर होगा, अगर कोई WH एडवर्ब है तो वो एडवर्ब WRB होगा, ठीक है। तो दिस लाइन इज द टैग। नाउन के लिए NN, वर्ब के लिए VB, प्रोनाउन के लिए PRB, एडवर्ब के लिए RB। एडवर्ब के लिए RB है तो WH एडवर्ब के लिए क्या होगा, who, सॉरी who नहीं होगा, Y के लिए हो जाएगा WRB, राइट। देन वी हैव कंजंक्शन, कंजॉइनर्स, जो 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। इट कैन बी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट कैन बी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। प्रीपोजिशन जिनको हम IN से डिनोट करते हैं, कंजंक्शन जिनको हम CC से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में हमारे पास डिटर्मिनर है, हिंदी में डिटर्मिनर हम यूज नहीं करते हैं, पर हिंदी में हम G लगाते हैं जिसको हम ऑनरिफिक बोलते हैं। तो ये तरीके से कुछ डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। लाइक इफ आई टॉक अबाउट बांग्ला, एनी बंगाली स्पीकर हियर? इन बांग्ला वी से एकटा, दूटा, वहाँ पे हम क्लासीफाई, इन मैथिली ऑल्सो, यस ऑफ कोर्स हम क्लासीफायर यूज करते हैं। तो वहाँ हमारे POS टैग में क्लासीफायर होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में उसकी जरूरत नहीं है पर हमारी लैंग्वेज में, राइट। तो हम अपना टैग सेट इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। We have foreign words, we have modals, we have possessing ending markers like his father's apostrophe s, right? Then we have particles, symbols, interjection. These are some tags in Pentree Bank जो हमारे लैंग्वेज में डिफरेंटली हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी लैंग्वेज का एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट, अब हम टैग करते कैसे हैं। लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल फर्स्ट। हे, return my keys,
है एन इंटरजेक्शन, तो हमने इसको इंटरजेक्शन टैग दिया. देन वी हैव अ सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हमने पंक्चुएशन टैग दिया. देन आई हैव अ सेंटेंस रिटर्न माय कीज. रिटर्न इज इन प्रेजेंट फॉर्म, so we are using present form of verb from this list, VBP, right? इसलिए हमने यहाँ पे return को VBP किया है. My possessive pronoun, his, common noun plural, right? लेकिन अगर हम past की बात करें तो हमारा verb form change हो जाएगा, VBP से VBD हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ verb को past form में यूज कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, लाइक अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करूँ, शी लव्स स्विमिंग, लव्स होना चाहिए था यहाँ पे, माय बैड. वहाँ पे थर्ड पर्सन के केस में प्रेजेंट है, वर्ब है, पर वो VBP ना हो कि VBZ हो जाएगा. VBZ बताता है कि यहाँ पे हम वर्ब का वो फॉर्म यूज कर रहे हैं जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट, like little differences in POS annotation. Based on this, when we get a raw data, we annotate the data and we pass it on for a next module to work on it. एक अगले मॉड्यूल के लिए वो कुछ भी हो सकता है, that could be chunker, that could be some other NLP system, उसके लिए हम इसको पास ऑन करते हैं, ठीक है. So यही सेम चीज यू नीड प्रैक्टिस फॉर दिस. आप POS की प्रैक्टिस करिए, और अभी पहले हम इसको मैनुअली भी करते हैं और अब आप इसको सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे जो लोग पाइथन सीख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, दे विल लाइक फॉर देम, उनको अगर मैनुअली नहीं करना है, हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, वी विल टेक लाइब्रेरी. हम जुपिटर नोटबुक में जाएंगे, स्पेसी लाइब्रेरी एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम देते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको एनोटेटेड डेटा वो देगा. नॉट जस्ट फॉर POS, फॉर पॉज, चंक, पार्सिंग, फॉर एवरीथिंग, राइट. जैसे यहाँ पे पहला लेवल है टोकन, देन क्लास, POS कैटेगरी, टैग लेबल एंड डिस्क्रिप्शन. अगर हम उससे टोकन मांगेंगे तो हमारा ये सेंटेंस है, शॉन स्कोर्ड 20 इन द फर्स्ट ओवर. दिस इज आवर सेंटेंस. फर्स्ट नेसेसिटी है कि इस सेंटेंस को हम टोकन लेवल पे टोकनाइज करके तोड़ दें, एवरी वर्ड इंडिपेंडेंटली. सो वी हैव दिस सीरीज, शॉन स्कोर्ड 20 in the first over, right? Next is class. हम उसकी क्लास डिफाइन करेंगे, उसकी कैटेगरी डिफाइन करेंगे. Sean is a noun, scored is a verb, 20 is a number, in is a adposition. उस कैटेगरी का POS कैटेगरी क्या होगा? नाउन है तो कौन सा नाउन होगा, वर्ब है तो कौन सा वर्ब होगा, दैट वी डिसाइड. टैग लेबल वी डिसाइड, उस चीज़ को लेबल देंगे, और उस लेबल का क्या डिस्क्रिप्शन है. सपोज इट इज VBD, so it is a verb in its past form. If it is JJ, it is adjective in like it is common adjective. It is JJR, that is adjective in comparative degree. If it is JJS, that is adjective in superlative degree, like prettiest, coolest, right? इस तरीके से ऑटोमेटिक POS टैगिंग होती है. और हम अगर खुद मैनुअल करेंगे तो वी कैन ट्रेन दिस अलॉन्ग विद द सिस्टम. हम एक डेटा को लेते हैं, रॉ डेटा को, उसको POS टैग करते हैं, उसको एज अ मॉडल उस गोल्ड डेटा को सिस्टम में फीड करते हैं, देन मॉडल उसके बेसिस पे ऑटोमेटिक POS टैग डेटा लगाता है, उस मॉडल को हम इवैल्यूएट करते हैं ऑन इट्स एक्यूरेसी. दिस इज हाउ वी create a POS tagging system. It can be rule based, it can be statistical, it can be algorithm based also, right? As I said, in Indian languages we are following BIS most of the times we do. Anything you would like to ask on this so far? Any curiosity? This is ADP, adposition. So adposition is a broader category which include preposition and postposition. In English we have prepositions, in Hindi we have postpositions. In the house is English preposition. घर में बाद में आता है में, that is postposition, right? Okay. So far we are clear, no? Now we quickly move on. How much time we have? Still 2 time, right? 10 minutes. Okay, done. Okay. So we are moving one level up. अब
अभी वर्ड लेवल से हम बात करते हैं फ्रेज लेवल की। चंग को हम थोड़ा ओमिट कर देते हैं, फ्रेजेस अट्रैक्ट अस मोर, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगल मतलब अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ कुछ और शब्द भी साथ में जुड़ के आते हैं। इस तरह के कुछ यूज केसेस होते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट का सिर्फ ट्रैफिक या सिर्फ लाइट से हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट अपने आप में एक शब्द है जिसका एक नया मतलब है, वो ट्रैफिक भी नहीं है और लाइट भी नहीं, इन दोनों को मिला के हमने एक कॉनोटेशन डेवलप किया कि ओके, सिग्नल पे जो लाइट हम यूज करते हैं हम उसको ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। बोर्ड पे हम जिस पे लिखते हैं हम उसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। जिस जहाँ पे स्विचेस लगी होती हैं उन स्विचेस वाले बोर्ड को हम स्विच बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर कंपाउंड वर्ड्स, वर्ड्स विच आर मोर देन वन वर्ड इन टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, दीज आर कॉल्ड मल्टी वर्ड। ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये इडियम्स भी हो सकते हैं, ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी हो सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया डिगिंग पोटैटोज। उसका मतलब आप इससे नहीं समझ पाएंगे उसका मतलब क्या है। ये हो गया एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड का मतलब उसके शब्द से जाना ना जा सके। वी हैव एंडोसेंट्रिक कंपाउंड ऑल्सो, लाइक स्विच बोर्ड। इट इज एविडेंट कि स्विच है और बोर्ड है और बोर्ड पे लगी हुई स्विचेस को हम स्विच बोर्ड बोलते हैं, उस बोर्ड को, राइट। वो हमारे लिए एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स हो गए। इडियम्स भी होते हैं जो एंडोसेंट्रिक भी होते हैं और एक्सोसेंट्रिक भी होते हैं। जैसे जब हम कोई लेट्स से पार्ट एंड पार्सल से हम समझ सकते हैं ये किसी चीज़ के पार्ट की बात की जा रही है कि वो चीज़ के अंदर क्या क्या कंटेन होता है या उसका इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। लाइक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग, ये उसके साथ आनी ही आनी है। बट कैट्स एंड डॉग, ये मुहावरा किसी ने सुना है? हम कैट्स एंड डॉग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, इसकी मीनिंग। सो इट इज एन एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड, राइट। देन वी हैव फ्रेजेस जो कॉमनली यूज करते हैं, एट लीस्ट, by and large, in short, these kind of phrases. We have reduplicated compound words like हिंदी में तो बहुत सारे और अलग अलग हमारे सबकी लैंग्वेजेस में बहुत सारे हैं, जैसे दरवाज़ा खटखटाना, खट 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 खटाना, onomatopoeic kind of expressions. खाना पीना, जल्दी जल्दी, चलते चलते, राइट। ये सारे reduplicated compounds हैं जो हम as it is दोनों फॉर्म सेम होते हैं कंपाउंड के, उनको हम कंप्लीट रिडुप्लिकेटेड बोलते हैं। और जिनमें दो फॉर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक टिक एंड टैक, खाना पीना इट हैज इट्स मीनिंग विच आर मीनिंगलेस ऑल्सो। चाय वाई, या वाई डज नॉट हैव एनी मीनिंग, थैंक्स अ लॉट। चाय वाई इज अ पार्शियल रिडुप्लिकेटेड कंपाउंड। ये रिडुप्लिकेशन होता है बट पार्टली होता है, कंप्लीट रिडुप्लिकेशन नहीं होता, राइट। आफ्टर रिडुप्लिकेशन वी हैव एब्रीविएशंस ऑल्सो। एब्रीविएशंस अपने फुल फॉर्म में दे मेक सम मल्टी वर्ड्स, लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फुल फॉर्म विल बी सम मल्टी वर्ड। WEF इज अ फ्रेज, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, विल इफेक्ट फ्रॉम, राइट। देन वी हैव नेम्ड एंटिटीज, थोड़ा सा बात हम करेंगे नेम्ड एंटिटीज पे, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, हम नाउ वी अंडरस्टैंड वी ऑल हैव आवर नेम्स। दे कुड बी नेम्स लाइक पर्सन का नाम, लोकेशन का नाम, प्लेस का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इट्स नेम्ड एंटिटी। न्यू दिल्ली प्लेस का नाम है, न्यूयॉर्क सिटी प्लेस का नाम है, इट्स नेम्ड एंटिटी। हम सबके अपने प्रॉपर नाम हैं, हमारे डेजिग्नेशंस हैं, इट्स नेम्ड एंटिटी। वी हैव टाइम ऑल्सो इन नेम्ड एंटिटीज। अगर हम कोई डेट स्पेसिफाई कर रहे हैं 22 जनवरी 1985 और वी आर टॉकिंग अबाउट सम इवेंट लाइक गांधी जयंती, so those are named entities, right? This is basically named entity. I'm cutting it short because we will discuss this in detail. So here we have two classifications. This is generic classification of MWE and this is linguistic classification. Linguistically हम क्या बोलते हैं, जो fixed expressions होते हैं जिनको हम छेड़ नहीं सकते, fixed हैं वो ऐसे ही यूज होंगे। सेमी फिक्स्ड एक्सप्रेशन जिनके स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्टिकली फ्लेक्सिबल एक्सप्रेशन जिनके स्ट्रक्चर में हम काफी चेंज कर सकते हैं। We can talk about the same thing in different ways. And institutionalized expressions like traffic light, जैसा जिसकी हमने अभी बात की कि वो एक तरीके का that is a domain, उस domain में this is specific expression that is institutionalized expression, right? थोड़ा सा हम MWE को देख लेते हैं अलग अलग डोमेन्स में, बिकॉज माई PhD वॉज ऑन हेल्थ केयर। तो देखते हैं हेल्थ केयर में या किसी और यूज केस में, दिस इज वन एग्जाम्पल, इसके थ्रू आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस किस तरीके के मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे
हार्ट अटैक, अगर कोई जनरल डेटा है, जनरल डोमेन डेटा है और उसमें हम कोई प्रॉब्लम बताते हैं, आइडेंटिफाई करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जनरल लैंग्वेज डेटा जो है वो उसका मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशंस पे तो काम करेगा, पर जो हमारे डोमेन की प्रॉब्लम्स है उन एक्सप्रेशंस पे वो जनरल मल्टीवर्ड टैगर काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड मल्टीवर्ड टैगर। अगर हेल्थ के डोमेन में देखें तो हमें ऐसा MWE टैगर चाहिए जो हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करे एज अ डिजीज, डायबिटीज मेलिटस को एनोटेट करे एज अ डिजीज, जो बताए हाई ब्लड प्रेशर इज अ डायग्नोसिस, डायग्नोस करके निकाला गया है दैट हाई BP इज अ प्रॉब्लम, जो बताए कि ओके पॉलीकैथेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, supine position is a position in which we do surgery, level 4 level 3 are the seriousness or you can say levels of the seriousness of diseases, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हर लैंग्वेज में ऐसा होता है, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स टेक्निकलिटीज, तो उसके लिए उन लैंग्वेजेस के उन डोमेन के स्पेशलाइज्ड मल्टीवर्ड एक्सट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है। दिस इज वन ऑफ दोज, राइट। इट इज ऑल्सो कवर्स बॉडी फंक्शन, किस किस तरीके के बॉडी फंक्शन, मतलब जो हम बॉडी फंक्शन जो मेजर करते हैं जब हम अपनी रिपोर्ट कराने जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, हार्ट रेट इज फाइन, ब्लड प्रेशर इज फाइन, क्या क्या लैब टेस्ट कराते हैं। अब जैसे लैब टेस्ट में MRI इज वेरी कॉमन, राइट, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, सो MRI इज अ मल्टीवर्ड in its full form, not its short form, right? So when we were devising this tag set, we also kept abbreviation as part of it, क्योंकि अगर ये सारी abbreviations हमने नहीं लिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में हमने MRI को कैप्चर नहीं किया तो वो टेस्ट हमसे उस डेटा में मिस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग हर जगह लिखा हो, MRI लिखा होगा, राइट। अगर IV लिखा है तो हमें पता होना चाहिए IV ऑल्सो स्टैंड फॉर इंट्रावेनस, नहीं तो इंट्रावेनस तो वो कैप्चर करेगा, IV नहीं करेगा। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे डेटा में हमें 10 वर्ड लेंथ तक के लंबे मल्टीवर्ड्स मिले। अभी जैसे मैं बोलूँ कि फ्रैक्चर, अक्यूट फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट नी, ये 5 वर्ड्स हो गया। अक्यूट फ्रैक्चर 1 फ्रेज, लेफ्ट नी 1 फ्रेज, बट अक्यूट फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट नी ये पूरा एक मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन है, राइट। सो दिस इज हाउ डेटा बिकम्स मोर सीरियस व्हेन यू वर्क ऑन इट। Okay, we also have some frozen expressions. So this tag set is devised. We devised it for a research with EasyDI, with another AI company, and this is available for everyone. And similarly we have multiwords for different domains. So anything if you want to ask on multiwords, yeah, please do. I know it's just introductory, but I hope it's clear. Named entities, we just talk about Robert Downey Jr. is a name, he lives in New York, and when we relate Robert Downey Jr. to New York, that becomes entity relation. Like Department of Biotechnology is a part of organization at Jawaharlal Nehru University. When we relate these two entities, this becomes entity relation. We are trying to establish relation between these two entities. Yeah, that is why I preserved it for the end. Okay. So these are some of the references from which I use for this PPT, and these are the research papers which we have presented and published in good reputed international conferences with my industry partners, with my academic team, with my professor, only for POS annotation and multi-word expression. And that's it from my side. Thank you.